So hello students, welcome back to online education. So in this lecture, we're going to discuss LC oscillations, all right? So in the last lecture, we had discussed energy stored in an inductor and we had discussed one example also. So in this lecture, we're going to discuss LC oscillations, all right? So what is this LC oscillation? So here we're going to consider a circuit. Let us consider a circuit with an inductor and a capacitor. So we are going to consider इस तरह से एक हम लोग सर्किट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है. Then inductor and a capacitor. So this is the inductor and this is the capacitor. Okay, ठीक है. All right. तो जो कैपेसिटर है, तो at t equal to 0, the charge on the capacitor is Q. That is, the capacitor is fully charged. Okay. So let us assume that the capacitor is fully charged at t equal to 0. It is fully charged. Okay, all right. And ये जो switch है यहाँ पे, तो ये switch हम लोगों ने t equal to 0 पे बंद किया है. Now what will happen, right? Now what will happen? Now the capacitor will start to discharge, correct? Right? The charge in the capacitor will start to decay, right? So now what will happen? Now the capacitor will discharge. So since the capacitor will discharge, a current will flow. जैसे मान लीजिए कि ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है. So what will happen? A current I will start to flow, right? A current I will start to flow, and this current will be minus dq by dt. This current will be minus dq by dt. ठीक है. So at any time t, the charge on the capacitor will be q, right? So we can say that at any time t, so at t equal to t, what will happen? The charge on the capacitor will be q, right? Because the charge is varying, charge धीरे धीरे decrease हो रहा है. So charge on the capacitor will be q. तो अगर हम लोग उसको q ले ले, तो capacitance कितना है? c है, right? तो ये जो current flow हो रहा है, तो इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर विल ट्राई टू अपोज दिस ग्रोथ ऑफ करंट, राइट? मतलब यहाँ पे जो है, व्हाट इंडक्टर डज, सो द इंडक्टर विल ट्राई टू अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट. सो व्हाट विल हैपन? करंट, ठीक है. So an EMF will be induced across the inductor, right? An EMF will be induced across the inductor. So an EMF will be induced across the inductor, all right? So the circuit will become like this. So this inductor will try to oppose the current. So an EMF like this will develop across the inductor, that is EL. And this is the capacitor, right? This is the capacitor having a charge Q, capacitance C. So current is flowing in this manner, right? This is minus, this is plus.
So if we write a loop law here, if we write a loop law like this, अगर हम लोग यहाँ पे एक लूप लॉ लिख दें इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस ई एल, ठीक है, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, और ये हो जाएगा प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो, राइट, ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है यहाँ पे यू इलेक्ट्रिकल, राइट, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी में, और फिर वापस जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो वापस कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल, इस तरह ये चलता रहेगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, राइट, यहाँ पे करंट का भी ऑसिलेशन होगा, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज का भी ऑसिलेशन होगा। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन तैयार हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि ई एल इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है। अब ई एल क्या होता है? तो ई एल मतलब जो ई एम एफ है उसके अक्रॉस उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड है एल डी आई बाई डी टी, तो आप लिख दोगे एल डी आई बाई डी टी, और ये क्या है, ये है Q बाई सी, ठीक है, Q बाई सी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो वी लेट अस डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, सो वी विल डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा डी टू आई, है डबल डेरिवेटिव उसका, डी आई बाई डी टी का डेरिवेटिव, यानी वो हो जाएगा डी टू आई बाई डी टी टू, ये हो गया डबल डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा 1/c इंटू डी क्यू बाई डी टी। अभी डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, तो i इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी है, तो डी क्यू बाई डी टी होगा माइनस आई, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस आई, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे माइनस आई, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा L डी टू आई बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस आई बाई सी, ठीक है। तो हम लोगों ने डी क्यू बाई डी टी को क्या डाल दिया है, माइनस आई, क्यों, क्योंकि आई इज माइनस डी क्यू बाई डी टी, राइट, आई इज माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा माइनस आई, ठीक है, ऑलराइट। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा डी टू आई बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस आई बाई एल सी, माइनस आई बाई एल सी, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है सेकेंड ऑर्डर का। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है ये क्या होगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो डी टू आई बाई डी टी टू, इसको यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस आई बाई, राइट, अंडर रूट एल सी का होल स्क्वायर, राइट, या एल सी लिख दो आप, इक्वल टू जीरो। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है, राइट, इसका जो सोल्यूशन है वो हमें यहाँ पे करंट का वेरिएशन देगा कि करंट किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट, एंड देन वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट, आप देख रहे हैं कि इनिशियल जो चार्ज है t इक्वल टू 0 वो q है। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट दिस इक्वेशन नाउ। सो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है अपने पास, राइट, जो इक्वेशन है वो क्या आया है, इक्वेशन आया है i इज इक्वल टू डी टू आई, राइट, इक्वेशन क्या है, डी टू आई बाई डी टी टू प्लस डी टू आई बाई डी टी टू प्लस
तो जो एल सी है वी कैन राइट इट एज 1/√LC का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इनटू आई इक्वल टू 0. सो वी कैन कंपेयर दिस विथ d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है. जैसे इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू x नॉट, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो वैसे ही, तो उसी तरह से ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो i का इक्वेशन है d2i, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो करंट का इक्वेशन है वो हो जाएगा i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसमें जो है आप देख सकते हैं हम लोग को ये इक्वेशन मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे फाइव अननोन है, ओमेगा तो हमें पता है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे राइट, तो जो ओमेगा होगा वो हो जाएगा 1/√LC, ठीक है. तो ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है, वो है 1/√LC. अब हम लोग को फाइव का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब हम लोगों को यहाँ से जो है फाइव का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज करेंगे जो हमें पता है कि एट टी इक्वल टू जीरो जो करंट है सर्किट में, वो करंट कितना होगा, जीरो. करंट जीरो क्यों है, बिकॉज द इंडक्टर विल अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट, राइट, बिकॉज जो इंडक्टर है इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट. ओके, सो द इंडक्टर विल अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट. इंडक्टर जो है इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट. इसके लिए t इक्वल टू जीरो पे जो करंट है वो जीरो है. तो हम लोग इस चीज को यूज करके, ये जो इक्वेशन है इसको मैं 2 बोल देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 से जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड आउट कि फाई कितना होगा. तो आई को हमने जीरो डाल दिया, तो जीरो इज इक्वल टू आई नॉट साइन, टाइम को हमने जीरो डाल दिया तो जीरो प्लस फाइव हो गया. तो यहाँ से आपको मिल गया जीरो इज इक्वल टू साइन फाइव, और आपको वहां से मिल जाएगा फाइव का वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. फाइव का वैल्यू कितना मिल गया हमको, जीरो मिल गया. तो जब हम ये फाइव का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जब यहाँ पे फाइव का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा आई इज इक्वल टू, ठीक है. तो ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो आई हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और फाइव का वैल्यू जीरो, मतलब हमें करंट का इक्वेशन मिल गया है. तो करंट कैसा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट. मतलब जो करंट है वो बेसिकली इस तरह वेरी करने वाला है, राइट. इस तरह जो है वो करंट वेरी करने वाला है, राइट. तो कभी करंट पॉजिटिव है, कभी करंट नेगेटिव है, यानी करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फिर करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है. ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटर है, राइट, कभी उसका ये वाला प्लेट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट इस तरह फ्लो कर रहा है. और जब इस तरह करंट फ्लो कर रहा है तो धीरे धीरे ये वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, तो उसके बाद फिर करंट इस तरह फ्लो करेगा, राइट. तो इस तरह जो है करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट है, करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, राइट. करंट कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो ये है करंट का इक्वेशन. तो इस तरह से जो है करंट वेरी कर रहा है, ठीक है. करंट जो है इस तरह से वेरी कर रहा है. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट, ऑलराइट. ओके, अब हम लोगों को चार्ज का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द चार्ज. ओके, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चार्ज का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. सो प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट एंड देन वील फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द चार्ज, ठीक है. तो चार्ज के इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करंट है, करंट को हम लोग यूज करेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द करंट, ऑलराइट. सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द करंट. So let us start.
तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जो आ गया, इसको हम 3 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग करंट को डाल देंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो गया माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे डी क्यू यानी क्यू का इक्वेशन निकालना है, तो वील हैव टू इंटीग्रेट दिस। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है, राइट, वी विल राइट दिस एज माइनस डी क्यू, और हम लोग डी टी को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम लोग ये जो है इसको इंटीग्रेट करना है, विल हैव टू इंटीग्रेट दिस। चलो लेट अस टेक न्यू पेज। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, हमने क्या लिखा था, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था। ओके, तो करंट को हम लोग लिख देंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, सो इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम लोग यहाँ वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया, डी टी को हम इस साइड ले आए। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जो चार्ज है, चार्ज का इनिशियल वैल्यू क्या है, चार्ज का इनिशियल वैल्यू कितना है, कैपिटल क्यू है। ओके, और जो फाइनल वैल्यू है किसी भी इंस्टेंट पे वो स्मॉल क्यू है। और जो टाइम है, राइट, टाइम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टाइम स्टार्ट कर रहे हैं टी इक्वल टू 0 से, और टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक। ठीक है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस क्यू। ओके, और आप उसका लिमिट्स डालोगे कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल क्यू से लेके स्मॉल क्यू तक। ओके, और ये जो आप देख रहे हो आई नॉट तो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले लीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा हो जाएगा। और इसमें हमें लिमिट्स डालना है 0 से लेकर टी तक। ठीक है, ओके, तो आइए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेट अस इंटीग्रेट दिस। द इंटीग्रेट तो कर चुके, लेट अस पुट द वैल्यूज। ओके, तो ये माइनस और माइनस आप दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, यू कैन कैंसिल दिस आउट। तो ये हो जाएगा आपका q माइनस कैपिटल Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई नॉट, ओमेगा आप बाहर ले लीजिए, और पहले आप लिखोगे कॉस, पहले टी डालोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, फिर 0 डालोगे तो ये हो जाएगा कॉस 0 इज 1। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। ओके, ऑलराइट, तो हमें यहाँ से बेसिकली फाइंड आउट करना है क्यू का इक्वेशन। तो क्यू का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू का इक्वेशन हो जाएगा, इस क्यू को आप उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा प्लस आई नॉट बाई ओमेगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमें यहाँ से ये इक्वेशन मिल गया है, ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमें मिल चुका है किसका, चार्ज का इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन में एक अननोन है, वो अननोन क्या है, व्हाट इज दैट अननोन, सो वो जो अननोन है वो अननोन है आई नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो हमें मिल गया यहाँ से, बट इस इक्वेशन में देयर इज वन अननोन एंड दैट अननोन इज आई नॉट। ठीक है, तो वील हैव टू फाइंड आउट दैट अननोन। तो यहाँ पे जो आप आई नॉट देख रहे हो, दिस आई नॉट इज अननोन एंड वील हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, और उसको फाइंड आउट करके हम लोग को इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4 में हमें आई नॉट का जो वैल्यू है वो हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग आई नॉट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी will convert into magnetic energy, पूरा का पूरा electrical energy will convert into magnetic energy because there is no resistor, since there is no resistor there is no loss of energy। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस नहीं है, सर्किट में रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज 0, तो रेजिस्टेंस 0 है तो पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है। द एंटायर इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, और फिर वापस मैग्नेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है वो कितना है, वो है Q²/2C। और जब वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उस वक्त जो करंट है, जब वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस वक्त जो करंट है सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी हाफ L I0² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग I0 फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I0। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप सॉल्व करो इसको, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, यू कैन कैंसिल दिस, ओके। और L को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा Q²/LC, Q²/LC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ से आपको I0 मिल जाएगा Q/√LC। अब ये जो है इसको आप लिख सकते हैं 1/√LC इंटू Q कर सकते हैं, और 1/√LC क्या है, वो ओमेगा है। तो I0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, I0 का वैल्यू आ जाएगा Q ओमेगा, ठीक है। I0 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, वो आ गया Q ओमेगा। तो अभी अगर हम लोग इस I0 इक्वल टू Q ओमेगा को इक्वेशन नंबर 4 में अगर डाल देंगे, राइट, तो यूजिंग इन 4, अगर इसको 4 में यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा चार्ज का इक्वेशन। तो चार्ज का इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये Q होगा, आप I0 की जगह डालोगे Q ओमेगा, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपको बचेगा, तो आप डाल लीजिए, आपको फाइनली मिल जाएगा Q इज इक्वल टू Q cos ओमेगा टी, ठीक है, Q इज इक्वल टू Q cos ओमेगा टी। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको यहाँ से मिल गया है, किसका इक्वेशन मिल गया, आपको मिल चुका है चार्ज का इक्वेशन, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हो गया है चार्ज का इक्वेशन। तो हमें करंट का इक्वेशन भी मिल गया है और हमें चार्ज का इक्वेशन भी मिल गया है, ठीक है। करंट का जो इक्वेशन है वो है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और चार्ज का इक्वेशन क्या आया, Q इज इक्वल टू Q कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हमें दोनों इक्वेशन मिल गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर लो, यहाँ तक प्लीज सब लोग आप नोट डाउन कर लीजिए। और आपको मैं समझाता हूँ कि ये चार्ज और जो आप करंट देख रहे हो, दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सो लेट अस स्टार्ट, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन वो कितना है, करंट का इक्वेशन आया है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आया है। और चार्ज का इक्वेशन क्या आया है, चार्ज का इक्वेशन आया है Q, और ये क्या है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आ गए, ऑलराइट, ओके। और आपको पता है कि I0 का वैल्यू कितना है, I0 का वैल्यू है Q ओमेगा, ठीक है। चलो उसको बस ध्यान में रखो आप, I0 का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज Q ओमेगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यहाँ पे कि किस तरह से करंट और चार्ज वेरी करने वाला है। सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वी गोइंग टू कंसीडर वन टाइम पीरियड, राइट, एक पूरा टाइम पीरियड के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट कि t इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है और t इक्वल टू t/4 पे क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग t इक्वल टू t/4, राइट, 1/4 टाइम पीरियड के लिए स्टडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 4 केसेस स्टडी करने वाले, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं t इक्वल टू 0, राइट। t इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है, t इक्वल टू 0 पे आप देखो यहाँ पे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से करंट कितना आएगा, 0 आएगा, और चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज आ जाएगा कैपिटल Q। मतलब ये है कि t इक्वल टू 0 पे जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ये है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर, इस तरह से, ओके। ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। तो जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है, इट्स फुल्ली चार्ज,
ये माइनस, ये प्लस, और इस तरह से करंट अभी बढ़ना शुरू हो रहा है। ये करंट है जो इनिशियली 0 है, लेकिन ये करंट क्या होने वाला है, ये करंट धीरे धीरे बढ़ने वाला है, इट्स गोइंग टू इंक्रीज। हालांकि इंडक्टर इसको अपोज कर रहा है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये करंट का वैल्यू क्या होगा, ये करंट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, राइट। इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है, इंडक्टर इज अपोजिंग द ग्रोथ ऑफ द करंट, but with time the current will grow. Okay, now let us try to understand कि t by 4 पे क्या होने वाला है, right? At time t equal to t by 4 what is going to happen? तो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं t is equal to t by 4, तो t equal to t by 4 पे जो करंट का इक्वेशन है उससे आप देखो क्या आएगा। तो उससे आपको करंट निकालना है, वो आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाई टी, और टाइम आप डाल रहे हो t बाई 4। ठीक है, तो 2 2 4 टी से यानी पाई बाई 2 आ गया। तो ये करंट हो गया आई नॉट, यानी करंट मैक्सिमम हो गया। करंट कितना हो गया, मैक्सिमम। और चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज आएगा q कॉस पाई बाई 2, यानी चार्ज 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि चार्ज 0 हो चुका है। ठीक है, मतलब t बाई 4 टाइम ड्यूरेशन जो है, इस ड्यूरेशन के अंदर कैपेसिटर का एनर्जी 0 हो गया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो कैपेसिटर का एनर्जी है वो मैक्सिमम है, यानी q स्क्वायर बाई 2c है। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर का एनर्जी 0 है बिकॉज करंट 0 है। ठीक है, t बाई 4 में क्या हो गया, t बाई 4 में आप देख सकते हो कि t बाई 4 में यहाँ पे जो कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो 0 हो गया है, और जो इंडक्टर का एनर्जी है, इंडक्टर का एनर्जी मैक्सिमम हो गया है। यानी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ओके। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखिए इस सिचुएशन में ये जो इंडक्टर है और ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, तो अभी कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो चुका है, कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो चुका है, लेकिन करंट 0 नहीं है। करंट जो है वो मैक्सिमम है, करंट का वैल्यू है आई नॉट, वो मैक्सिमम है, और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, और कैपेसिटर का कितना एनर्जी 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एनर्जी जो है पूरा का पूरा कैपेसिटर से इंडक्टर में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको, इसके लिए जो टाइम लगा वो है t बाई 4। ठीक है, तो अभी चार्ज 0 है, अभी कैपेसिटर पे चार्ज 0 है। तो ऐसा 0 कैसे हो गया कैपेसिटर पे चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर पे जो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा था, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा था। एक पॉइंट पे कैंसिल करते करते, राइट, यहाँ पे जो है उसने पूरा इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो दोनों पे चार्ज आ गया 0, दोनों प्लेट पे। लेकिन अभी भी करंट फ्लो कर रहा है, अभी भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कुछ देर में, कुछ देर के बाद यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से जो है चार्ज ऑसिलेट करने वाला है। ठीक है, तो करंट जो है वो अभी भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट इज स्टिल फ्लोइंग। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लेट अस टॉक अबाउट द टाइम t इज इक्वल टू t बाई 2। t बाई 2 पे क्या होगा, तो t बाई 2 पे आप चेक करोगे जो करंट है, करंट का वैल्यू आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। आप जब करोगे तो वो आ जाएगा साइन पाई, तो साइन पाई हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, यानी करंट 0 हो जाएगा। और चार्ज आप देखोगे, आप चेक कर लो, चार्ज का वैल्यू आ जाएगा q cos पाई, तो वो हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि cos पाई इज -1। तो अब जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर चुका है पूरी तरह से, और जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था अब उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी पूरा का पूरा जो चार्ज है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो डायग्राम बनेगा, तो उस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अब सिचुएशन इस तरह का है। ठीक है, अब जो सिचुएशन है वो इस तरह का है कि ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, तो सर्किट में जो करंट है वो करंट 0 हो गया है। करंट कितना हो चुका है, 0। और ये वाला प्लेट हो गया है पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस प्लेट इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज, यानी इस पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज, तो अभी तक आप देख सकते हो ये आधा टाइम पीरियड हमने डिस्कस किया है। तो आधे टाइम पीरियड में चार्ज जो है, चार्ज
का आधा ऑसिलेशन हो चुका है, मतलब ये जो प्लेट 1 पॉजिटिव था अब वही प्लेट 1 नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, ओके। और करंट जो है वो जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से जीरो हुआ, तो करंट का भी आधा ऑसिलेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। तो इसके आगे जो है यानी नेक्स्ट t/4 अगर आप लेते हो तो वो हो जाएगा टाइम t इज इक्वल टू 3t/4, ठीक है, 3t/4, ठीक है, यानी 0.75t, ओके। तो अब आप चेक करो कि यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना हो रहा है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2π/t, और टाइम कितना ले रहे हो आप, 3t/4 ले रहे हो। तो यहाँ से t कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 2 4 हो गया, 3π/2। अब साइन 3π/2 क्या होता है, -1 होता है, तो आई का वैल्यू आ गया -I0। और चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, चार्ज हो जाएगा q cos 3π/2 यानी 0, ठीक है, चार्ज 0 हो गया, ओके। हाँ, यहाँ पे एक चीज और आप देख लो कि जो एनर्जी है, राइट, तो इस केस में एनर्जी कितना हो गया, अभी कैपेसिटर का एनर्जी फिर से हो गया q²/2c, और इंडक्टर का एनर्जी कितना हो गया, इंडक्टर का जो एनर्जी है वो हो गया 0, ठीक है, ओके। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से जो करंट आई नॉट हो गया, तो इंडक्टर का जो एनर्जी है वो फिर से हो गया हाफ Li0², और जो कैपेसिटर का एनर्जी है वो हो चुका है 0, ठीक है। तो लेट अस मेक द डायग्राम यहाँ पे। तो अभी जो इंडक्टर है, राइट, इंडक्टर है और ये कैपेसिटर यहाँ पे है। तो कैपेसिटर में जो ये वाला ऊपर वाला प्लेट है ये पॉजिटिव है, तो अब जो करंट है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट अब इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, -I0 हो गया है। तो ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, और कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो फिर से कितना हो गया, कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो फिर से 0 हो गया, और करंट जो है वो इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट। तो हमने पूरा एक टाइम पीरियड यहाँ पे डिस्कस करना था, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट, वो है t इज इक्वल टू टी। तो t इज इक्वल टी पे आप चेक करोगे करंट का जो वैल्यू है I0 साइन 2π/t हो गया, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा टी का वैल्यू t। तो जो करंट है वो 0 हो गया, फिर से करंट क्या हो गया, 0, यानी फिर से जो इनिशियल स्टेट है वो आ जाएगा, जो इनिशियल स्टेट है फिर से क्या होगा, फिर से वो स्टेट आ जाएगा। और चार्ज आप चेक करोगे तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा q cos 0 यानी q, यानी फिर से ये वाला स्टेट आ गया, यानी पूरा एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, राइट। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये ऑसिलेशन जो है इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। एक एक टाइम पीरियड में चार्ज जो है वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, राइट, करंट जो है वो भी अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनर्जी है, राइट, एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी इंडक्टर का जो एनर्जी है वो 0 हो गया, यानी इंडक्टर भी अपने इनिशियल स्टेट में आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो कैपेसिटर है, राइट, कैपेसिटर का एनर्जी कितना हो गया, वो फिर से अपने इनिशियल स्टेट में q²/2c आ गया। तो एनर्जी का ऑसिलेशन 2 बार हुआ है। एनर्जी का ऑसिलेशन 2 बार कैसे हुआ है वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो, पहले यहाँ पे q²/2c था, ठीक है, चलो वो हम लोग देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि एनर्जी का ऑसिलेशन जो है वो कैसे यहाँ पे 2 बार ऑसिलेट हुआ है। तो जो इंडक्टर है, इंडक्टर भी अपने इनिशियल स्टेट में आ गया है, और जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर भी अपने इनिशियल स्टेट में आ गया है, ठीक है, तो कैपेसिटर भी अपने इनिशियल स्टेट में आ गया है, ठीक है। तो जो इंडक्टर है, यहाँ पे जो करंट है वो फिर से कितना हो गया, करंट 0 हो गया जो इनिशियल स्टेट में था, और जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो चार्ज फिर से कैपिटल Q हो गया है, ठीक है, ऑलराइट, यानी ये फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ चुका है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये अलग अलग, राइट, हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग केसेस लिए। तो ये हमने लिया पहला केस, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से ये ग्रीन बॉक्स में डाल देता हूँ। ये हो गया पहला केस। फिर हमने लिया यहाँ पे, ये हमने लिया दूसरा केस, ठीक है, तो ये दूसरे ग्रीन बॉक्स में मैंने डाल दिया, सेकेंड केस, ओके। फिर हमने लिया तीसरा केस, उसको मैं एक और दूसरे बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये देखो, ये हमने यहाँ से लिया, दिस वाज आवर थर्ड केस, ओके। और फिर हमने यहाँ से ये लिया, दिस वाज आवर फोर्थ केस,
and this was the last one, right, which was our fifth case. So फिफ्थ केस से हम लोग वापस किस में आ गए, हम लोग वापस जो है इनिशियल स्टेट में आ गए, ठीक है। सो दिस इज आवर फिफ्थ केस। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ओके। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जो है एनर्जी का दो बार ऑसिलेशन हुआ है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। तो आप देखो यहाँ पे, आप देख सकते हो कि इनिशियली जो एनर्जी है राइट कैपेसिटर में, वो कितना है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और फिर ये कितना हो गया, फिर ये जीरो हो गया, और फिर ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो गया। तो ये एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, यानी मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, और वापस क्या होगा, वापस ये मैक्सिमम से जीरो और जीरो से मैक्सिमम, यानी कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो यहाँ पे दो बार ऑसिलेट कर रहा है। यानी एक टाइम पीरियड में जो एनर्जी है कैपेसिटर का वो दो बार ऑसिलेट हो रहा है, राइट, और इंडक्टर का भी दो बार ऑसिलेट हो रहा है। तो एनर्जी का ऑसिलेशन दो बार है, चार्ज का ऑसिलेशन एक बार है, और करंट का ऑसिलेशन भी एक बार है। तो मैं आपको एक एक करके तीनों समझाता हूँ। सबसे पहले आप एनर्जी का समझिए। एनर्जी का जो वैल्यू है वो इनिशियली कितना है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। क्यू स्क्वायर बाई टू सी से वो कितना हुआ, जीरो हुआ, जीरो से फिर कितना हुआ, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यानी एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। अब वापस क्यू स्क्वायर बाई टू सी से जीरो हुआ, और जीरो से वापस क्यू स्क्वायर बाई टू सी हुआ, यानी एनर्जी के यहाँ पे दो ऑसिलेशन हो गए। चाहे आप इंडक्टर से चेक कर लो, इंडक्टर का इनिशियल वैल्यू जीरो है, जीरो से इंडक्टर का मैक्सिमम हुआ यानी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, फिर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर से फिर वो जीरो हुआ, और फिर जीरो से वो कितना हो गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया, और फिर यहाँ से जीरो हो गया, यानी इंडक्टर का जो एनर्जी है उसका भी दो बार ऑसिलेशन हुआ। तो एनर्जी का ऑसिलेशन दो बार हो रहा है एक टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज का क्यू से स्टार्ट हुआ चार्ज, क्यू से कितना हुआ, जीरो, जीरो से माइनस क्यू, यानी ये आधा ऑसिलेशन, और माइनस क्यू से फिर जीरो, और जीरो से क्यू, यानी ये पूरा ऑसिलेशन। तो एक टाइम पीरियड में चार्ज का जो ऑसिलेशन है वो हो रहा है, राइट, एक बार हो रहा है चार्ज का ऑसिलेशन। और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका टाइम पीरियड जो है वो 2π/t, यानी t है टाइम पीरियड चार्ज का और करंट का। तो चार्ज और करंट जो है वो एक बार ऑसिलेट करेंगे, और एनर्जी जो है दो बार ऑसिलेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ओके। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट करिए, डायग्राम बनाइए। अब राइट इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग जो है यहाँ पे अभी वी विल अंडरस्टैंड दिस विद अ डायग्राम, we'll just understand this with a diagram, okay। So let us try to understand this। तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, राइट, अगर हम बात करें एक टाइम पीरियड की, यहाँ पे बात करें जैसे t इक्वल टू जीरो पे अगर हमने देखा, तो t इक्वल टू जीरो पे जो है एनर्जी, अगर आप देखोगे तो कैपेसिटर का एनर्जी ज़्यादा है, और इसका एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, राइट, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। तो we can write here, so let us write down that यहाँ पे जो U कैपेसिटर है वो कितना है, Q स्क्वायर बाई टू सी है, और U इंडक्टर कितना है, U इंडक्टर जीरो है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि T इक्वल टू टी बाई फोर पे क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं, तो T इक्वल टू टी बाई फोर पे, अच्छा यहाँ पे we'll have to take capital T, so let us take capital T, T by 4 पे क्या हो जाएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगा। मतलब अब जो कैपेसिटर में जो एनर्जी है, राइट, वो हो जाएगा जीरो, वो कितना हो जाएगा, जीरो। और जो मैग्नेटिक एनर्जी है, तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन में जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एनर्जी हो चुका है जीरो, और जो इंडक्टर है, इंडक्टर का एनर्जी हो चुका है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव डिस्कस द फर्स्ट टू केस, नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड केस। थर्ड केस मतलब जब हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू टी बाई टू, यानी ये आपका आधा टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो आधा टाइम पीरियड पूरा होगा, तो यहाँ पे फिर से जो है कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर बढ़ जाएगा, और फिर वो बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और जो इंडक्टर है,
इंडक्टर का एनर्जी क्या हो जाएगा, इंडक्टर का एनर्जी हो जाएगा 0, तो फिर से कितना हो जाएगा 0। सो ये पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो यू कैपेसिटर है वो फिर से, अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया एक्चुअली। ये जो यू इंडक्टर है इसका वैल्यू होगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, यू कैपेसिटर कितना हो गया है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और यू इंडक्टर हो गया है 0। तो ये है एक ऑसिलेशन, दिस इज वन ऑसिलेशन, क्योंकि ये जो मैक्सिमम से क्यू स्क्वायर बाई टू सी से ये 0 हुआ और 0 से मैक्सिमम हुआ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो एनर्जी है कैपेसिटर का, राइट, यू सी, तो यू सी आप देख सकते हो वो मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम से 0 हुआ और 0 से मैक्सिमम हुआ। तो इस तरह से ये एक ऑसिलेशन हो गया। इंडक्टर का जो वैल्यू है वो इंडक्टर 0 था, 0 से मैक्सिमम हुआ और फिर मैक्सिमम से 0 हुआ। तो ये एक एक ऑसिलेशन पूरे हो गए। ठीक है, यानी आधे टाइम पीरियड में ही जो है यहाँ पे एक एक ऑसिलेशन जो है वो पूरा हो गया। ओके, ठीक है, तो दे हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज आवर, राइट, एट टी इक्वल टू 0 पे ये था सिचुएशन। उसके बाद टी इक्वल टू टी बाई 4 पे दिस इज द सिचुएशन, राइट। ये जो एनर्जी है कैपेसिटर का वो 0 हुआ, और फिर जब आधा टाइम पीरियड पूरा हुआ तो कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो कितना हो गया, वो हो गया है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ऑलराइट, और इंडक्टर का 0। यानी कैपेसिटर का एनर्जी मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इफ यू जस्ट प्लॉट दिस ग्राफ, तो ये मैक्सिमम से 0 हुआ और 0 से मैक्सिमम, ये कैपेसिटर का हो गया। और अगर आप यहाँ पे यू जस्ट प्लॉट अ ग्राफ फॉर इंडक्टर, ये 0 से मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम से 0 हो गया। तो दिस इज व्हाट वी हैव मेड। तो ये एक एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो इसी तरह से आधे टाइम पीरियड में फिर से इनका एक ऑसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है, राइट, एनर्जी का जो ऑसिलेशन है, राइट, एनर्जी का अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी वो हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन जो है वो ओमेगा नहीं है, वो 2 ओमेगा है, क्योंकि आधे टाइम पीरियड में एक बार हो रहा है तो एक टाइम पीरियड में 2 बार होगा, तो वो है 2 ओमेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, करंट का जो ऑसिलेशन है उसका वो है ओमेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज, चार्ज का जो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो भी ओमेगा है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। अच्छा ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो टोटल एनर्जी है, राइट, वो जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी हमेशा रहता है कांस्टेंट। तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दैट। तो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट टोटल एनर्जी। तो लेट अस टेक दैट कॉन्सेप्ट एंड देन वील एंड दिस लेक्चर। टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट वो क्या होगा, वो होगा, टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा सम ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, राइट। सो टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा किसी भी इंस्टेंस पे, वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे हाफ एल आई स्क्वायर, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, राइट, एट टी इक्वल टू टी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एट टी इक्वल टू टी जो चार्ज है वो क्यू है और जो करंट है वो आई है। ठीक है, जो चार्ज है वो क्यू है और जो करंट है वो आई है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्यू का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन डाल के हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये कांस्टेंट आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। तो आप लोग सब यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट। लेट अस नाउ डू दिस लास्ट पार्ट, दिस डेरिवेशन। ओके, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू शो दैट द टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो टोटल एनर्जी क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, तो Q का इक्वेशन क्या है, Q का इक्वेशन है Q
cos ओमेगा टी, Q cos ओमेगा टी, यस। तो इसका स्क्वायर हो गया, बाई की बाई क्या हो गया यहाँ पे 2c हो गया, ओके। और करंट का इक्वेशन क्या है? करंट का जो इक्वेशन है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है करंट का इक्वेशन, राइट। ये आप लोगों को ध्यान में होगा, ध्यान में नहीं है तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ कि जो करंट है, करंट का इक्वेशन आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो चार्ज है, चार्ज का इक्वेशन आया है क्यू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये करंट और चार्ज का इक्वेशन जो है हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग इट, सो लेट अस यूज इट, ओके। सो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यू स्क्वायर बाई 2c हमने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और सेकेंड इस टर्म में हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हमने ले लिया, और ये अंदर क्या बचा? अंदर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो आपको याद है, राइट, आपको याद होगा, याद होना ही चाहिए कि जो आई नॉट है, आई नॉट का वैल्यू क्या आया था? आई नॉट का वैल्यू आया था क्यू ओमेगा, ठीक है। आई नॉट का वैल्यू क्या आया था? क्यू ओमेगा। तो आई नॉट स्क्वायर क्या होगा? आई नॉट स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा होता है 1/√LC, तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर आ जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 1/√LC का होल स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा इज 1/√LC। तो आई नॉट स्क्वायर का वैल्यू आ गया क्यू नॉट स्क्वायर बाई LC, सॉरी क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आई नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई LC आ जाएगा। तो हम लोग इस वैल्यू को क्यू स्क्वायर बाई LC जो ये वैल्यू है, राइट, इसको हम लोग यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर, इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो इक्वेशन ए में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे क्यू स्क्वायर बाई LC, तो हमें यू कितना मिल जाएगा? तो हमें यहाँ से यू मिल जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एल, तो आई नॉट स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे क्यू स्क्वायर बाई LC, तो यहाँ से ये एल और एल कैंसिल हो गया, और ये आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हम लोग यहाँ से जो है देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचने वाला है? अंदर बचने वाला है कॉस स्क्वायर ओमेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 हो जाएगा। तो यू यानी एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कांस्टेंट है, यानी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या आ रहा है? टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, राइट, वो वेरी नहीं कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो लेट अस राइट डाउन दिस पॉइंट दैट द total energy the total energy is always a constant, ठीक है, always a constant, ठीक है। तो जैसे कि किसी सिचुएशन में पूरा का पूरा एनर्जी कैपेसिटर में है, किसी सिचुएशन में पूरा का पूरा एनर्जी इंडक्टर में है, और किसी सिचुएशन में थोड़ा एनर्जी कैपेसिटर में, थोड़ा एनर्जी इंडक्टर में, इस तरह से। पर लेकिन टोटल एनर्जी जो वो कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, या फिर आप इसको बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हो। सो लेट अस नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस लेक्चर, ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। We have finished with today's lecture. In the next lecture we will take some examples based on this concept of LC oscillation, ठीक है। तो I hope you have understood what is LC oscillation। इसमें एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, राइट। एनर्जी कैपेसिटर ले लो तो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, 2 बार हो रहा है ऐसा, ठीक है। और इंडक्टर का भी इस तरह से जीरो से मैक्सिमम से जीरो से मैक्सिमम से जीरो, 2 बार एनर्जी जो है इंडक्टर का भी ऑसिलेट हो रहा है, ऑलराइट। So this is very very important to understand. This is UC and UL, और चार्ज का ऑसिलेशन एक बार हो रहा है टाइम पीरियड में, और करंट का भी एक बार हो रहा है। So we end with this lecture now, okay। In the next lecture we will take some examples.